मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, आप देख रहे हैं सेना के जवान भारत रत्न लता मंगेशकर जी को राष्ट्रीय सम्मान के साथ विदाई देने के लिए परिवार के लोग, मंगेशकर परिवार के लोग भारी मन से, सभी की आंखें नम हैं। As the priests prepare everything for the last rites, one of the things everyone will remember about Didi was that in spite the magnitude of her talent, this was a person of utter simplicity. Her demeanor was characterized by her humility, simplicity, her devotional nature. This was a person whose being was simplicity and devotion. आप देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस पंच तत्व में विलीन होने की बेला में अपनी श्रद्धांजलि को दर्शाते हुए अपनी नम आँखों से। One of her songs एक प्यार का नगमा है said, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। Lata Didi did just that. Her life has become a legend that will live on. She lived every moment of her life as an inspiration for everyone. This is what it is to live life. This is the one lesson she taught to everyone, to all the girls, to all the women who think that they are not as good as men. Lata Didi's life, the way she lived her life, proved that a girl can be an inspiration to the whole world.
Legends never die, just like the eternities of music that reverberate forever, surrounding us with melodies of life. As you can see, the music lovers and all Indians are just walking past, paying their last respects with their heart full of tears, their eyes full of tears, and then coming to terms with the loss of this legend. Lata ji gave us reasons to smile, to celebrate, to laugh, and even to cry with her. She will be the eternal rainbow of music that shines and brightens the sky. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, जिनका बहुत गहरा नाता था लता दीदी से, नम आंखें लिए हुए आप देख रहे हैं, सामने से लोग जा रहे हैं, उस लम्हे को कैद करना चाह रहे हैं अपने आंखों में, अपनी दीदी की अंतिम दर्शन को लेते हुए जा रहे हैं, नमन कर रहे हैं, अपने मोबाइल में कैद करना चाह रहे हैं इस क्षण को। लता मंगेशकर जी जैसी विभूति न भूतो न भविष्यति। Pandit Satyashil Deshpande and Raj Thakre and our Jawans. When she sang "Ae Mere Watan Ke Logo," the Jawans felt that it was for her. It was that song that brought Chacha Nehru to tears. All of us have had this experience that when we have been joyful, it was to the accompaniment of her voice. When we were sad, we had her voice to fall back upon. When we were pensive or thoughtful, the background of her voice helped us collect our lives, pause our thoughts and think. It'll take us hundreds of years to realize our loss, and maybe another century for the world to produce such a musical genius. She was one of the greatest musical maestros the world has ever seen.
Now, in the wake of her absence, we will miss the guidance that she gave us, the example that she set for all of us, and the reassurance that she gave to us with her presence. We will miss the wonderful Didi of our land, our titan of musicianship. India itself has lost its voice. One remembers the ones who have been forgotten, but no one can ever forget Didi. She will be with us every moment, her voice soothing us, inspiring us, supporting us, making us see light and a reason to live. हिंदू संस्कृति के अनुरूप पवित्र अग्नि प्रज्वलित हो गई है। हमारे विद्वान पंडित लोग मंत्रोच्चार कर रहे हैं उसके पाठ सम्मुख बैठकर। सामने आप देख रहे हैं शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, आशा भोसले जी, जोनाई भोसले, मंगेशकर परिवार, उषा मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, जोनाई भोसले, सबकी आंखें भरी हुई हैं आंसुओं से। मन अंदर ही अंदर बहुत दुखी है। कैसे हम देंगे विदाई अपनी दीदी को। जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया। पैंडेमिक का ख्याल न करते हुए भी लोग कैसे छोड़ सकते हैं अपनी दीदी को। वे सभी देखना चाहते हैं, अपने अपने कैमरों में कैद करना चाहते हैं अपनी प्यारी दीदी के अंतिम दर्शन को। She truly belonged to all of us.
Lata Didi cannot be confined to one country, one state, one language. She was beyond boundaries. Obituaries are pouring from all over the world, with everybody in mourning. She is the greatest example of how one human being can unite everyone. Her voice, when she sang, inspired everyone, united everyone. There was no thought of religion, no thought of caste, no thought of nationality or a particular community. She truly ruled everyone with just her voice that ruled the whole world. People are streaming past, not wanting to miss out on this chance. And as you can see on your screen, the Prime Minister, माननीय प्रधानमंत्री जी शिवाजी पार्क स्थल पर कुछ ही क्षणों में पहुंच जाएंगे, पहुंच गए हैं। दीदी का और उनका नाता भाई बहन का था। वे प्रधानमंत्री जी को राखी भेजा करती थी। प्रधानमंत्री जी की अंतिम पंक्तियों को उन्होंने स्वर दिया, उनके लिखी हुई पंक्तियों को जो उन्हें बहुत प्रिय थी। संगीतकार मयूरेश पै जी ने जिसे संगीतबद्ध किया था। वे पंक्तियां हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने इन प्रधानमंत्री जी की पंक्तियों को अपना स्वर दिया, जिसे संगीत दिया था मयूरेश पै जी ने। प्रधानमंत्री जी के लिए ये पल बहुत ही कष्टदायक है। वे आज सुबह से ही बहुत बोझिल हैं, दुखी हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी, अजीत पवार जी, सेना के जवान राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सबसे नमन कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, प्रधानमंत्री जी अपनी बहन को भारी मन से, नम आंखों से विदाई देंगे।
Prime Minister Shri Narendra Modi ji. He has come to pay his last respects to his sister, to a bond that was beyond words, to a bond that was a very, very sacred one. That of a bond of uniting with the country, of unity, of brotherhood, of love, of peace, of unity. आणि शोकाकुल वातावरणामध्ये या शिवतीर्थावर मावळत्याच्या सूर्याच्या साक्षीने It is just apt that the Prime Minister pays last respect to his sister. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी पंडित रूप नारायण त्रिपाठी जी की एक रचना पीर टाले न टल रही होगी, लता दीदी अमर रहे, यूं तबीयत अमर रहे, मचल रही होगी, लता दीदी अमर रहे, तुम चिता देख कर न घबराना, भारताचे माननीय आत्मा पंतप्रधान घर नरेंद्र मोदी बदल रही होगी. प्रधानमंत्री जी या ठिकाणी दीदींना नम पुष्पचक्र आँखों वाहून से आदरांजली अपनी अर्पण दीदी करतात. को नमन करते हुए भरे मन से, अश्रु से भरी आंखें आप देख सकते हैं. आपल्या प्रत्येकाच्या भावना खऱ्या अर्थाने आज आपल्या साश्रू नयनातून आपण सगळेच जण व्यक्त करतोय. तर असा क्षण कधी आपल्याला आयुष्यात लवकर येईल असं वाटलं नव्हतं. आपल्या स्वरातून आपल्या मनावर आघात गाजवणाऱ्या गारुड गाजवणाऱ्या त्या लता दीदींना आपण आज अखेरचा निरोप देतोय. माननीय राज्यपाल डॉक्टर भगतसिंग कोश्यारी या ठिकाणी दीदींना पुष्पचक्र अर्पण करून आदरांजली अर्पण करतात. माननीय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, महाराष्ट्र के गवर्नर भारतरत्न लता मंगेशकर यांना भगत सिंह कोश्यारी जी आदरांजली या ठिकाणी व्यक्त करतात. अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के चीफ ठाकरे, मिनिस्टर उद्धव संरक्षण ठाकरे जी आणि पर्यटन मंत्री माननीय आदित्यजी ठाकरे या ठिकाणी दीदींना भारत रत्न लता मंगेशकर जी पुष्पमाला को अर्पण अपनी करून त्याचबरोबर पुष्पचक्र अर्पण करून आपली आदरांजली व्यक्त करतात. श्रद्धांजलि देते हुए पूरे महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से माननीय नरेंद्रजी मोदी, आदित्य ठाकरे जी, माननीय लता दीदींच्या सर्व कुटुंबियांना या ठिकाणी त्यांची सांत्वनपर भेट या ठिकाणी होते. आणि दुसरीकडे राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री यांनी आता नुकतंच दीदींना पुष्पचक्र अर्पण केलं आणि सौरश्मी बहिणी आणि त्याचबरोबर पर्यटन मंत्री आदित्यजी ठाकरे या दीदींना पुष्पमाला अर्पण करून आपली आदरांजली व्यक्त करतात. पीयूष गोयल साहब
केंद्रीय मंत्री माननीय पियुषजी गोयल या ठिकाणी दीदींना आदरांजली व्यक्त करतायत. त्याचबरोबर माननीय खासदार माननीय शरदचंद्रजी पवार हे देखील या ठिकाणी दीदींना आदरांजली वाहतात. अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूरा प्रांगण जब गूंज तक रहा है। सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहे, अमर रहे। अमर रहेगा। जय घोष। राज्याचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार या ठिकाणी लता दीदींना पुष्पचक्र वाहून आदरांजली वाहत आहेत. तत्पूर्वी त्याच्या अगोदर गोव्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांनी देखील दीदींना त्या ठिकाणी आदरांजली वाहिली. आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं आशा जी से, जुनई से, उषा जी से, परिवार के सभी सदस्यों से। मुंबईकरांच्या वतीने मुंबईच्या प्रथम नागरिक तथा महापौर माननीय किशोरताई पेडणेकर या ठिकाणी लता दीदींना आदरांजली वाहत आहेत. पुष्पचक्र वाहून त्या ठिकाणी आदरांजली व्यक्त केली जाते. मुंबईच्या प्रथम नागरिक तथा महापौर माननीय किशोरताई पेडणेकर. सेना के जवान दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, सौभाग्यवती रश्मिताई ठाकरे आणि पर्यटन मंत्री आदित्यजी ठाकरे या ठिकाणी लता दीदींच्या कुटुंबियांची सांत्वन भेट या ठिकाणी घेत आहेत. आणि त्यानंतर शासकीय इतमामात लता दीदींना अखेरचा निरोप दिला जाईल. माननीय मंत्री छगनजी भुजबळ हे देखील लता दीदींना आदरांजली अर्पण करतात. माननीय राजसाहेब ठाकरे हे देखील लता दीदींना आदरांजली व्यक्त करतात. राज ठाकरे जी, गीतकार जावेद अख्तर साहब लता दीदींना अखेरची सलामी देण्यासाठी दीदी को
अपनी भावांजलि देते हुए आपली आदरांजली व्यक्त करतात. विविध सैन्य दलाच्या कृती दलाकडनं देखील या ठिकाणी लता दिदींना पुष्पचक्र वाहून या ठिकाणी आदरांजली दिली गेली. माननीय भाई जगताप, माननीय सुप्रियाताई सुळे, माननीय विनोदजी गावडे, माननीय जावेदजी अख्तर, माननीय सुभाषजी देसाई. हेमा मालिनी. You can see Supriya Sureji on the screen. लता दीदींना पुष्पचक्र वाहून आपली आदरांजली व्यक्त करतात. The music community mourns the loss. You can see the musicians who have come to pay the last respects. Pandit Bharat Balwali, Pandit Satyashil Deshpande, माननीय अनुभवजी पौडवाल who cannot आणि अन्य मान्यवर believe that their mentor, पुष्पचक्र their वाहून guide, आदरांजली is व्यक्त no करतात. more. त्यांचं अंतिम दर्शन विविध क्षेत्रातले मान्यवर या ठिकाणी घेत आहेत आणि असंख्य संगीत प्रेमी या प्रांगणाच्या शेजारून जी व्यवस्था केली आहे तिथून लता दिदींचं अंतिम दर्शन घेत आहेत आणि आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये हे चित्र कैद करतात. कारण आपली ही उर्मी जगण्याची उर्मीच मुळात लता दिदींचं गाणं होतं जे आपल्यातनं गेल्यानंतर आपण आज संपूर्ण आयुष्य हरवून गेल्यासारखं पाहतो. कारण आयुष्यामध्ये संगीत नसेल तर आपलं आयुष्य समृद्ध होऊ शकत नाही. जगण्यासाठी 2 वेळचं जेवण आवश्यक आहे, पण त्याच्या पलीकडे संगीत आणि कला क्षेत्राची नितांत गरज असते आणि तेच लता दीदींनी आपल्या आयुष्याला दिलेलं मोठं वरदान होतं. You can see Anuradha Podwal coming in to pay her last respects. The ones we love don't go away. They are with us. They become a star and they're always with us. Their love, their security, the support is always with us. So many heartbroken people are filing past just to pay the last respects. त्यानंतर ज्येष्ठ सिने अभिनेते शाहरुख खान आणि मान्यवर या ठिकाणी दीदींच्या पार्थिवाला आदरांजली वाहतात. A Bharat Ratna paying tribute to another Bharat Ratna. Sachin Tendulkar and Anjali Tendulkar. Lata ji was an avid cricket fan and she used to follow all the matches of especially when India played. And Sachin was her favorite cricketer. And here he is, who has to be with her in these last moments. एक भारत रत्न का दूसरे भारत रत्न को भावपूर्ण श्रद्धांजलि. बेटे का माँ को नमन. You can see Shah Rukh here. अभिनेता शाहरुख खान आप सामने देख रहे हैं, वो दीदी को नमन कर रहे हैं, अपनी भावांजलि दे रहे हैं अभिनेता शाहरुख खान जी. शंकर महादेवन जी दीदी को अपनी भावांजलि
अर्पित करते हुए Director Madhur Bhandarkar and Ashutosh Gavarikar, O Palan Hare, sung by Didi for Ashutoshi's film Lagan, and music by A.R. Rahman, was one of the last songs, one of the few last songs that Didi sang for us. सिद्धार्थ राय विद्या बालन जी अपनी भावांजलि अर्पित कर रहे हैं भारत रत्न लता मंगेशकर जी को। The music world has lost its titan. आज शिवाजी पार्क मुंबई महाराष्ट्र का एक बार फिर से साक्ष्य है इस मेला का, जहां भारत रत्न लता मंगेशकर जी को हम सभी अपनी नम आँखों से दे रहे हैं अंतिम विदाई। Shivaji fought for the nation, and Lata Didi united all of us. It's such an coincidence that the place where she is now laid to rest is at the Shivaji Park. The brave and the brave heart. मुंबईच्या या शिवतीर्थावर सायंकाळच्या सूर्याच्या साक्षीने शासकीय इतमामात दीदींना अंतिम विदाई देण्यासाठी एकत्र आलेलो आहे। खरं तर हा क्षण खूप दुर्दैवाचा आहे, पण अशा क्षणातून आपण दुःखी तर होतोच, पण जी पोकळी निर्माण होते ती पोकळी भरून काढण्यासाठी म्हणून कुणाकडे पाहावं तर समोर कोणीच दिसत नाही, पण दिसतो तो असमंतात असणारा एकच स्वरलतेचा सूर, आणि त्या सप्त सुरातून ही चिरंतन प्रेरणा अशीच कायम राहावी याकरता दीदी आपल्याला ही मानवंदना। आज शासकीय इतमामात या ठिकाणी अभिनेता आमिर खान स्वरचंद्रिका स्वरलता भारत रत्न दीदी को गान सम्राज्ञी लता दीदींना अपनी आदरांजलि अर्पित करते हुए या अंतिम विधीला शिवतीर्थावर इथे सुरुवात होते। अनेक मान्यवरांनी
भारताचे सन्माननीय पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी, राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री अभिनेता रणबीर उद्धवजी कपूर, ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्य सर्व मंत्रीगण, पर्यटन मंत्री माननीय आदित्यजी ठाकरे, राज्याचे माननीय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, कला क्षेत्रातील क्रीडा क्षेत्रातील अनेक दिग्गज, अन्य अनेक मान्यवरांनी माननीय शरदचंद्रजी पवार, माननीय राजसाहेब ठाकरे, अनेक मान्यवरांनी या ठिकाणी विधी नायक आदरांजली वाहिली आणि हा अंतिम क्षण आपण आज शिवतीर्थावर या ठिकाणी जगतो, अनुभवतो, तो साक्षीने नयनाने अनुभवतो. कारण यातून आपण एकच उमेद घेऊन जगू की दिदींचं गाणं हे चिरंतन अमरत्व प्राप्त झालेलं आहे. आता मंत्रांनी या ठिकाणी सुरुवात केली. आपण कृपया सर्व मान्यवरांना विनंती, आपण स्थानापन्न व्हावं, आपल्या आपल्या जागेवर स्थानापन्न व्हावं. सेना के जवान दीदी को कृपया सगळ्यांनी बसून घ्यावं अशी सगळ्यांना पुन्हा एकदा विनंती करतो. सम्मान दे रहे हैं और उनके ज्येष्ठ अभिनेते माननीय आमिर खान, जैसा कि आप देख रहे हैं, त्यांच्या कुटुंबियांचे या ठिकाणी सन्मान. पार्थिव शरीर को भी सर्व मान्यवरांना विनंती, कृपया आपण इथे बसून घ्यावं. आपल्या त्या ठिकाणी जी आसन व्यवस्था आहे तिथे आपण बसून घ्यावं. पण शासकीय इतमामात आणि मंत्रांनी पूरे सम्मान के साथ इथे दीदींना अंतिम विदाई देणार आहोत. लेकर उस स्थल पर आएंगे जहां आगे की क्रिया संपन्न की जाएगी. शासकीय इतमामात दीदींचं पार्थिव आता त्या ठिकाणच्या चबुतऱ्यावर जिथे आपण त्यांना अंतिम विदाई देणार आहोत त्या ठिकाणी आप देख रहे हैं, अमर रहे लता दीदी. बहुत ही अखेरचा हा पिढा गुंडर होतो. वेदना से भरा है ये आपल्या पल. उठ्यांवर देखील असं वाटलं नव्हतं की अंतिम विदाई आपण या ठिकाणी दीदींना देतो. हे अंतिम संस्कार शासकीय इतमामात शिवतीर्थावर मावळत्या सूर्याच्या साक्षीनं पंचतत्व में सप्टेंबर 2000 विलीन होने की बेला. सप्टेंबर 29 पासून झालेला हा प्रवास आणि आज 6 फेब्रुवारी 2022 हे महाकाल पर्यंत अनंत हात दिली गेली. People are screaming, जब तक सूरज चांद रहेगा, लता तेरा नाम रहेगा. They now realize that this is the last moment that this mortal body is with us, soon to be merged with the 5 elements. The army jawans have laid the mortal body, and now the pandits will take over. शासकीय इतमामात तिन्ही सैन्य दलांच्या वतीने या ठिकाणी हा अंतिम विदाई सोहळा, अंतिम सोहळा, अंत्यसंस्कार मंत्रोच्चाराच्या साक्षीने केला जातो. शिवतीर्थावर लता दिदींना हा अंतिम निरोप दिला जातो आणि जगभरातून सर्व संगीत प्रेमी साश्रू नयनाने ती अंतिम विदाई पाहतात. पण त्या दिदी आजपासून आपल्यात नसतील, पण त्यांचा स्वर मात्र ज्याने आपलं आयुष्य समृद्ध केलं, आपल्याला वरदान दिलं, तो मात्र कायमच आपल्याबरोबर असेल.
बाकी सर्व मान्यवरांनी विनंती, आपण आपल्या जागेवर कृपया स्थानापन्न व्हावं. इतर सर्व मान्यवरांना विनंती आहे, पण मंत्राग्नी त्या ठिकाणी दिला जातोय आणि शासकीय इतमामात हा अंतिम संस्कार केला जातोय. बाकी मान्यवरांना विनंती आहे की कृपया आपण आपल्या जागेवर स्थानापन्न त्या ठिकाणी व्हावं. सेना के जवान भारत रत्न लता दीदी को राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हैं, आप देख रहे हैं. बहुत हिली बेला और ये शस्त्रों की सलामी. आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग अपनी भावपूर्ण विदाई देने के लिए शिवाजी पार्क में एकत्रित हुए हैं. दीदी चिर निद्रा में विलीन हो गई है.
The Indian tricolor, which was adorning our dear Lata Didi, has now been handed over to Adinath, to the family. The pride of the nation, and her family is also pride for us. आदिनाथ मंगेशकर जी, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, परिवार के अन्य सदस्य, सर्व मान्यवरांना विनंती, कृपया आपण आपल्या जागेवर स्थानापन्न व्हावे. वैदिक रीति से दीदी को विदाई दी जा रही है. ना रहे हम महका कली, बन के कली, बन के सबा. As Naam Gum Jayega plays in the background, the priests are preparing for the last rites. The words say, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे. I wonder if anyone can ever forget that voice. That voice, that personality, that human being, that light that Lata Didi was, can never be forgotten. It will walk with us, support us for as long as we live. मंत्रोच्चार करते हुए आप देख रहे हैं हमारे सामने
जैसा कि आप देख रहे हैं, परम सत्ता में विलीन होने की ये रीति पूरे मंत्रोच्चार और विधियों के साथ संपन्न हो रही है, जिसके साक्ष्य बन रहे हैं हम सभी, आप सभी। Thousands of candles can be lighted from a single candle. Lata Didi was that candle that came and shone on the horizon of Bollywood music. She changed the music industry single-handedly. She ruled the music industry because of her talent, because of her brilliance, because of her genius. She has inspired so many people who are now taking music professionally and singing. Her light, her candle, her flame has lit so many candles. And her light is still shining. Her brilliance will always shine. Her genius will always guide us. सर्वांना एक विनंती कृपया की ज्यांचं दर्शन झालंय Lata Didi was proficient with all genres of music: classical, light, bhajan, geet, thumri, ghazal, bhavgeet, lokgeet, in all the languages, and in whichever language she sang, one could not make out that that was not her native language. It was so hard to believe that a person could sing in so many languages, so many genres, in such a pitch-perfect voice, with perfect command on the lyre. Her voice, which ranged over 5 octaves, had the flexibility. It had that firat that everyone strives for. It's always said that an artist can appreciate another artist. And all the singers, all the musicians are now mourning. As you can see on the screen, people crying uncontrollable tears because this loss can never be fulfilled. Her song, each and every song of hers, was like a PhD for music students who could learn so much about singing from just one song. Every expression, every thought, every feeling she could convey with just her voice. No wonder all the producers wanted her to sing for them. That voice, once it touched any song, it made that song immortal. आप देख रहे होंगे कि कितने लोग रो रहे हैं
बिलख रहे हैं, उनका अपने पे काबू नहीं है, क्योंकि ये बेला ही ऐसी है। पंचभूत से पंचतत्व में विलीन होने की बेला। देखिए, लोगों को उनके परिजन संभाल रहे हैं, वे इस बात को अभी भी स्वीकार नहीं पा रहे हैं कि दीदी नहीं रही। She was the umbrella under which everybody took shelter. For that umbrella to go away is such a loss to all of us. Now, in the wake of her absence, the music industry will miss that guidance, that lighthouse, that encyclopedia, that genius that Didi was. Each and every song she touched, each and every song she gave vocals to, became immortal. वैदिक रीति से किया जा रहा है दीदी का अंतिम प्रभु से मिलन की बेला का जो क्षण होता है। पंचभूत से बना शरीर मिल जाएगा उस पंच तत्व में। हिंदू वैदिक रीति के अनुरूप सारी तैयारियां की जा रही हैं। मंत्रों के उच्चारण के साथ राष्ट्र विदा करेगा अपनी बुलबुल को, जो सो गई है सदा के लिए। आप देखें, मंत्र उच्चारित किए जा रहे हैं। रूपनारायण त्रिपाठी जी जो बहुत बड़े कवि रहे, उन्होंने लिखा है, पीर टाले नटल रही होगी, पीर टाले नटल रही होगी। अव्यक्ता गतिर्दुःखन्देहगतिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि रुचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निविशस्यसि मय्येव तवोर्धन्य संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथ एतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानविशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनयन्दरः
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखाक्षमी सन्तुष्टः सततयोगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते जयः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनवेक्ष्य शुचिर्दक्ष उदासीनो गदव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः न रुष्टति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दासु दुर्भौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थितमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतविदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमा भक्तास्तेऽस्तीव मे प्रियाः। आपने देखा कि मंत्रोच्चार के द्वारा भारत रत्न स्वर कोकिला वैदिक रीतियों से हमारे विद्वान पंडितों ने इस रीति को संपन्न किया। अभी भी वे मंत्रोच्चार कर रहे हैं आगे की रीति के लिए। दयाभूतेषु लोलुप्तं मार्दवं हीरजाबलं तेजः क्षमाग्निश्चं च मन्दिरो नातिमानिका भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्येव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता आशिषः सम्पदं देवीमभिजातस्य पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुरेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थमेश्वरो प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान् विविधरासुराः न शौचग्नाभिचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकः एतान् दृष्टमवष्टभ्यो नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः परवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः दुष्पूरं दम्भमानवदान्विताः मोहाग्रहीश्वासद्ग्राहान्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमविड्वे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुरनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः धेनावयज्ञैस्तेनाविधिपूर्वकाम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽप्यकाः तानहन्तु शङ्कुरूरान् संसारेषु धनाधिमान् क्षिपां यस्त्रमशुभनासुरीष्वेव योनिषु आश्रीयोनिमापन्ना मूढा जनमनि मामप्राप्य वदन्ते ततो यान्त्यथमाङ्गते आदिनाथ जी यशस्त्रविधमिच्छुर्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गते तस्मात् चात्रं प्रमाणं ते कार्याकारे व्यवस्थितौ
ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। भावुक बने, ये देखिए सेना के जवान सैल्यूट करते हैं, राष्ट्रीय सम्मान देते हैं। This is truly a heartbreaking moment, not only for the family, for all of us. भारतरत्न लता मंगेशकर यांना बंदुकीची फैरीची सलामी देऊन या ठिकाणी अंतिम विदाई सार्वजनिक इस्मामात दिली जाते। बँड वर्षाचा हा गाणं से बनाए शरीर पंचतत्व में विलीन होने जा रहा है, उसके साक्ष्य बन रहे हैं हम सभी, आप सभी। आज की इस मेला में मुंबई महाराष्ट्र का ये शिवाजी पार्क देखिए, ये महान विभूति हमारे देश की विलीन हो गई अनंत में, उस पंचभूत में, पंच तत्व में, कर गई हम सभी को सूना, छोड़ गई हमें, हम सभी को। ऐसा लगता है जैसे शब्द कम पड़ रहे हैं, क्या कहें। भारत रत्न स्वर कोकिला, हमारे देश की वो कोहिनूर जो आज हम सभी को छोड़ हमसे परम सत्ता में विलीन हो चुके हैं, अनंत की यात्रा पर। परंतु दीदी सदैव हम सब के दिलों में, दिमाग में बनी रहेंगी अपने सुरीले गीतों से। ऐसे लोग कभी हमारे बीच से जाते नहीं हैं। ये तो शरीर है जो विलीन हो रहा है, आत्मा अजर है, अमर है। As everyone pays their last respects, the most loved Didi, with tears in their eyes and a heavy heart. But God has kept a place for her
just beside him. She will be there. I think the heavens also need some music. That is why they have taken away Aditi from us. But we know that her legacy will live on. Lata Didi will live on. Her songs will live on beyond eternity. And if there is universe and a world beyond universe, then now she will be everywhere. She no longer belongs only to us in this physical body. Now she is everywhere. You can see Adinath going around the body in the traditional ritual. And as Rahe Na Rahe Hum plays on, song tells you that yes, she is going to be there in this, maybe not in the physical body, but in spirit, in soul, in spirit, in her love, in her guidance, in that twinkle, in her smile. Her smile will stay on. It will live forever to inspire us, to inspire millions, and maybe spread this genius across time and space. Yes, we are grieving, but we know you are there with us. I know you will never leave us. You will be there with us always. And now we are sharing you with the universe, with everyone, so that everybody can feel her touch. पंचतत्व में विलीन हो गई हमारी आपकी सभी की भारत रत्न बुलबुल हिंद स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। Let us all fold our hands and pay our last respects. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण मुंबई के शिवाजी पार्क से, जहां पे स्वर कोकिला